السلام علیکم ہم وطنان عزیز. السلام علیکم. ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف دا میزنین شو. اور ہم تھوڑے عرصے کے تھوڑے بریک کے بعد آئے ہیں اور ہم کو بہت سارے میسیجز آ رہے تھے کہ آپ لوگ کہاں ہیں, کیوں شو نہیں کر رہے. تو تھوڑی سی اس کی وضاحت دے دوں کہ ہم لوگ فل ٹائم جابس بھی کرتے ہیں, فیملی بھی رن کرتے ہیں, تو آبویسلی اٹ ٹیکس اے لاٹ آف ٹائم. لیکن اب ہم کوشش کریں گے کہ اپنے ریویوز ریگولرلی دیں. اور بیچ میں کچھ ایسا بھی ہوا تھا کہ کچھ ڈراماز اینڈ ہو گئے تھے اور پھر نئے ڈراماز آ رہے تھے. تو اب جب کہ بہت سارے وہ ڈراماز شروع ہو گئے ہیں تو اب ہم وی فیل لائک کہ ہم ان کا ریویو دے سکتے ہیں. تو آج جو سب سے پہلے ہم ڈرامے کا ریویو دیں گے وہ ایک نیا ڈرامہ شروع ہوا ہے جس کا نام ہے سمجھوتا. اور آئی ڈونٹ نو, کہانی از کائنڈ آف ٹریجک. آپ کا کیا خیال ہے؟ سمجھوتا مجھے بہت اچھی کہانی لگ رہی ہے کیونکہ یہ عموماً گھروں میں ہوتا ہے اور کسی کو محسوس نہیں ہوتا. کئی دنوں سے میرے ذہن میں تھا کہ جو بزرگ لوگ ہیں, جو ریٹائرڈ لوگ ہیں, ان کے لیے کوئی پروگرام ہونا چاہیے جہاں وہ جا سکیں اور اپنی ایکٹیویٹیز کر سکیں. تو یہ سمجھوتا نے ایک نئی راہ دکھائی ہے. اس میں ہوتا ہے کہ دو قسم کی خواتین ہوتی ہیں. ایک تو وہ ہوتی ہیں جو بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی ہیں, ان کو کہنا چاہیے اوور ایکٹیو ہوتی ہیں زندگی میں, اور وہ اتنی لائل ہوتی ہیں ہر ایک کے ساتھ کہ وہ اپنا بھی خیال نہیں کرتی ہیں. ان کو اپنے لیے ٹائم نہیں ہوتا, بلکہ ان کو ساری انہوں نے ایک ریاست سنبھالی بھی ہوتی ہے اور ان کی اس ریاست سے جان نہیں چھوٹتی. اور دوسرے لوگ بھی جو آ کے وہ لیٹ بیک ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ آلریڈی ایک انسان کام کرنے والا ہے, تو لوگ اس کی ہیلپ نہیں کرتے اور ساری ذمہ داریاں اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں. دوسری قسم کی وہ خواتین ہوتی ہیں جو ایک خاص عمر میں جا کے, ابھی وہ 40 کی بھی نہیں ہوئی ہوتی, کہ وہ اپنے ساری ذمہ داریاں چھوڑ دیتی ہیں اور کہتی ہیں ناؤ آئی ایم ٹائرڈ, اور اب تم لوگوں کو میرا خیال رکھنا ہے, اب میں کچھ نہیں کروں گی. دونوں صورتوں میں نقصان خواتین کا ہی ہوتا ہے. وہ کس طرح یہ اس کہانی میں بتایا گیا ہے کہ جو منزہ ہیں وہ اتنا کام کر رہی ہیں, شی لکس ینگ, کہ بھویں بھی آ گئی ہیں اور وہ اپنا بڑا خیال رکھتی ہیں اپنی فٹنس کا, اور اس کو ایک ایسی عورت بتایا ہے جو کلاس لے کے ان کے ہر اس میں ایک ٹیسٹ ہے, ان کی چوائس کا نظر آتا ہے کپڑوں میں, چیزوں میں. مطلب یہ کیریکٹر اس خاتون کا دکھایا ہے کہ 3 بچوں کی ماں ہیں اور ماشاءاللہ میاں بیوی میں اتنی بانڈنگ ہے کہ وہ میاں نہ ان کے بغیر رہ سکتے ہیں نہ وہ میاں کے بغیر رہ سکتے ہیں. انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہے. تو اس سلسلے میں کیا ہوا کہ بہویں گھر میں آتی بھی ہیں اور وہ بالکل ان کا خیال نہیں کرتی. زبانی کلامی تو بہت ہوتا ہے لیکن پریکٹیکلی کچھ ہو نہیں رہا. گھر میں ملازم بھی ہیں اور ایک اچھی ایفلوئنٹ فیملی دکھائی ہے جس کے پاس بزنس ہے اور کافی میٹس وغیرہ بھی ہیں. گھر کے رہن سہن سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کافی اپر کلاس لوگ ہیں. اس میں جب بہویں بھی آتی ہیں وہ بھی اچھے گھرانوں سے آتی ہیں, لیکن آنے کے بعد میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کا بس زبانی کلامی بات ہو رہی ہے کہ آپ اپنا خیال رکھیں, ان کی تعریف ہو رہی ہے, لیکن یہ نہیں ہو رہا کہ ان کا کچھ ہاتھ بٹایا جائے, بلکہ ہر ایک اس میں جو ہے نا آرام طلب ہو گیا ہے. خاص طور پہ جب لڑکیاں شادی ہو کے جوائنٹ فیملی سسٹم میں جاتی ہیں تو اس میں ان کو بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ وہ تھوڑی سی ذمہ داریاں بانٹ لیں اور اس گھر کے ایمبینس کو, اس کے اسٹائل کو, اس کے کلچر کو سمجھنے کی کوشش کریں. لیکن یہاں ایسا دکھایا نہیں گیا. اور سمجھوتا, کون سمجھوتا کر رہا ہے, کون آگے جا کے اس میں سمجھوتے کی پیک پہ ہوگا, یہ تو کہانی ہی بتائے گی. لیکن اب تک جو میں نے دیکھا ہے اور جو میرا ریویو ہے وہ یہ ہے کہ خواتین کے ساتھ اس طرح کی خواتین جنہوں نے ایک پوری ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے, ان کے ساتھ عموماً ایسی زیادتی ہوتی ہے کہ وہ کسی کو پتہ نہیں چلتا. اچھا, میں ایک بات آپ سے کہوں گی کہ جب انسان کو لانگ ٹرم بھی سوچنا چاہیے, رائٹ, تو اس میں جو ان کی ساس منزہ کا کیریکٹر دکھایا ہے کہ وہ اتنی اوور لیڈن ہے کہ شی اینڈز اپ بینگ سک نا, ان کو کینسر ہو جاتا ہے اینڈ دین شی پیسز ان دیٹ سچویشن. تو ایٹ واٹ پوائنٹ ایسا کون سا وقت ہوتا ہے جس پہ انسان کو ہیلپ کے لیے ہیلپ مانگنی چاہیے, رائٹ؟ بیکاز انسان کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اپنی برداشت سے زیادہ لے رہا ہے, اور اس میں تو یہ دکھایا گیا. اینڈ ایکچولی یہ اسٹوری ہمارے ساتھ ریزونیٹ کرتی ہے بیکاز ہم پرسنلی ایسی ساسوں کو جانتے ہیں
जिनकी हेल्थ बहुत इफेक्ट हुई है, बिकॉज घर की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। हम पर्सनली ऐसे लोगों को जानते हैं, ऐसी लेडीज़ को जानते हैं कि जो ऑसम मदर इन लॉज थी, लेकिन बिल्कुल उनकी कमर तोड़ दी गई और फिर दे एंडेड अप बिकमिंग रियली सिक। और इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। लेकिन ऑल्सो आपको ऐसा नहीं लगता कि एट सम पॉइंट सास को कहना चाहिए कि भाई अब जिम्मेदारी आप संभालें? अगर किसी को खुद एहसास नहीं हो रहा तो वो कौन सा मौका होता है जिस पे जाके हेल्प मांगनी चाहिए? मैं आपको अपने एक छोटा सा अपनी लाइफ से इसको मतलब रिलेट करूँगी। मुझे जब रेस बढ़ते बढ़ते मतलब जब मैंने अपनी करियर क्लाइंबिंग की, तो जब मैं मैनेजर के ओहदे पे पहुंची, तो उन्होंने मुझसे ये कहा, कॉर्पोरेट ने मुझको बुला के बाकायदा ये कहा, ट्रेनिंग दी मुझको इस बात की कि आपको लोगों से काम कैसे करवाना है। उन्होंने कहा आप अब इस डेजिग्नेशन पे पहुंच गई हैं, उस पे पहुंच गई हैं पीक पर के, अब आपको नीचे वालों से अपना काम करवाना पड़ेगा। आप उनके शूज़ में जाके उनको आराम नहीं देंगी, उनकी अपनी जिम्मेदारी है जो आपने एक्स्ट्रा उठाई हुई है। क्योंकि मैंने उनसे जाके शिकायत की थी कि भाई ये मैनेजरशिप तो बहुत मुसीबत है मेरे साथ, मैं तो नहीं कर सकती इस तरह। तो उन्होंने फिर मुझको ट्रेनिंग दी और मुझको ये सिखाया कि मुझे दे डोंट वांट टू बी टोल्ड ना। हर एम्प्लॉय का यही होता है, अपने से छोटे हर एक का ये होता है कि वो सुनना नहीं चाहते कि आप उन्हें क्या कह रहे हैं। लेकिन ये कि ये ज़िंदगी का एक उसूल है जो अपनाना चाहिए कि आपको लोगों को बताना आना चाहिए कि अब उनकी ज़िम्मेदारी है, अब यहाँ से उन्होंने संभालना है, ये काम उन्होंने संभालना है। तो इसकी ट्रेनिंग दी गई और लाइफ मेरे लिए इजी हुई। इसी चीज़ को मैं अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई करती हूँ कि कहाँ मैंने ख़ुद करना है और कहाँ मैंने ये काम मेरा नहीं है। तो उससे हर एक जो है ना, एक उसमें रहता है कि हर एक को ज़िम्मेदारी भी उठा लेते हैं और किसी के ऊपर बर्डन ज़्यादा भी नहीं पड़ता। अच्छा, एक और बात, जो आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, लेकिन चलिए यहाँ पे तो ट्रेनिंग दी ना उन्होंने आपको कि भाई एम्प्लॉयज़ से काम कैसे करवाएं। इस तरह की ख़वातीन जिनको जो ऐसी फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल नहीं है, ऐसा एजुकेशनल प्रोसेस से वो नहीं गुजरती, और मुझे ऐसा लगता है कि जिन मदर इन लॉज को हम जानते हैं जो इस तरह की सिचुएशन में दे एंडेड अप, और कि उन्होंने घर की पूरी जिम्मेदारी उठाई हुई थी एंड देन दे एंडेड अप बीइंग रियली सिक, या ये जो इनका केस दिखा है समझौता में मुनज़्ज़ा का, तो आई ऑल्सो थिंक कि इनके जो आसपास के बच्चे हैं, चलें शायद बहुओं को इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होती नहीं है, वो इतनी सेंसिटिव। लेकिन उनके जो अपने बेटे हैं उनको ये बात समझना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि घर के बच्चों को ये बात समझनी चाहिए, बेटी को और बेटों को, कि अगर माँ बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं तो इट इज़ हर वे, शायद उनको लगता है कि वो इसी तरह से रेलिवेंट रह सकती हैं या फैमिली से अटैच रह सकती हैं, राइट? तो उनकी इस चीज़ को एक्सप्लॉइट ना करें, बल्कि उनको और ये फीलिंग दिलवानी चाहिए कि ये आप काम किए बगैर और अपने आप को इतना बर्न टू द बोन्स के बगैर भी आप हमारी लाइफ में रेलिवेंट रह सकते हैं। दे डोंट हैव टू फॉरएवर बी वर्किंग लाइक अ मेड अराउंड द हाउस कि वो आपकी लाइफ में रिलेटिव रहें। इसमें एक और नुक्ता भी मुझे समझ आ रहा है, वो ये है कि ख़वातीन जो हैं इतनी ज़िम्मेदारियाँ क्यों संभाले हुए हैं। एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ये है कि जो आपने बताया कि वो समझते हैं कि वो शायद अब अनटिल मतलब वो एक पिक्चर में हैं, तो उनको अपने आप को अभी भी प्रूव करना है। दूसरी बात ये है कि उनको लगता है कि उनके बगैर काम नहीं होगा और चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, जगह ख़राब हो जाएगी। तो वो दूसरी बात ये है कि कोई बहू आके उनका सारा जो उन्होंने सेटअप किया हुआ है उसको ख़राब कर देगी। अगर ख़राब भी कर देती है तो आपको समझाना है, क्योंकि आप तजुर्बेकार हैं, दूसरा नहीं है, तो उसको समझाना पड़ेगा कि भाई ये काम इस तरह होगा। काम करने के भी जो तरीक़े होते हैं, आपने अपनी जो क्वालिटीज़ हैं उसको ट्रांसफ़र करना है आगे, ताकि दूसरे लोग जो आपने सीखा है ख़ुद, तो वो आप दूसरों को ट्रांसफ़र करें। तीसरा एक नुक्ता अहम इस बात में ये है कि कुछ लोग पावर हंगर होते हैं, तो वो ख़वातीन उस पावर को छोड़ना नहीं चाहती। तो ये एक बात इम्पॉर्टेंट है कि वो समझती हैं कि मुझे पावर में रहना है, मुझे हर एक पे हुक्म भी चलाना है, या इनके मुनज़्ज़ा के केस में तो हुक्म चलाना नहीं है, उनके केस में है कि शी इज़ ट्राइंग एवरीवन टू बी हैप्पी विद हर। सो ये चीज़ जो है, आई थिंक दिस इज़ नॉट
राइट। उनकी ये कोशिश है, हाँ। उनको लगता है कि शायद उनके बच्चे इनको बिल्कुल डिस्कार्ड कर देंगे, बिल्कुल। इसी तरह से वो उनकी ज़िंदगी में अहम रह सकती हैं, एग्जैक्टली। टू बी रेलेवेंट ना, जी। दैट्स द ओनली वे शी बिल्कुल। नोज। लेकिन इस हालत में बच्चों को हम लोग बार बार ये बात करते हैं कि बच्चों को अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए, और उस पेरेंट्स को जो है, समटाइम्स पेरेंट्स को भी थोड़ा गाइड करना चाहिए जेंटली कि भाई ये नहीं, आप इस तरफ अपना दिल लगाएं। बिल्कुल। और दुनिया में करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, हमने जी। कुछ दूसरे ड्रामों में भी इस टॉपिक पे टच किया है बिल्कुल। कि उनको हाँ। किसी रीडिंग क्लब में डालें, किसी गोल्फ के, किसी स्पोर्ट्स के, किसी कार्ड प्लेइंग क्लब में, किसी चेस प्लेइंग क्लब में, किसी ऐसे क्लब में डालें कि वो अपनी एज के दूसरे लोगों से जो है वो एसोसिएट करें एंड दे कैन रिलेट टू ईच अदर ना। बिल्कुल। और एक और बात जो मेरे जहन में आ रही है कि वो जो इनकी दूसरी बहन महरीन, दूसरी बहू सारी महरीन जब शादी होके आती हैं तो वो कॉन्स्टेंटली शादी में कह रही होती हैं, मेहंदी में कह रही होती हैं अपने होने वाले हस्बैंड से, मुनज़्ज़ा के बेटे से, कि आपके पेरेंट्स की तो बहुत आइडियल कपल है, बहुत आइडियल कपल है, बहुत आइडियल कपल है। और सास के मरने के अगले दिन उनके लिए दूसरा दिन होता है, लाइक शी इज़ जस्ट रेडी टू मूव ऑन, कि ससुर भी जो है वो सारा सामान वो कर दें, और बिल्कुल जैसे अब सास चली गई हैं तो चली गई हैं भाई, जस्ट फॉरगेट एंड बिल्कुल। मूव ऑन, राइट। हाँ। तो गिरगिट की तरह कलर बदलना भी लोगों की, दे डू चेंज फितरत कलर्स होती है। लाइक जी। ग्रास हॉपर्स। तो अनफॉर्चुनेटली ये भी लाइफ की रियलिटी है जो उसमें दिखाई गई है, लेकिन ड्रामा ट्रैजिक है, बट आई बिल्कुल। एग्री। हम ऐसे लोगों को जानते हैं, ऐसी सासों को जानते हैं कि जिनका ये हशर हुआ है। जी। और दूसरी बात ये है कि ख़वातीन को भी, हर एक को दुनिया से जाना है। हर माँ को जो इस स्टेज पे पहुँच जाए उसको ज़िम्मेदारियाँ दूसरों पे डालनी चाहिए, ताकि उनके जाने के बाद बच्चों का ये हशर ना हो जो इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है, कि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। फादर अलग, डैड जिनके घर में बैठे हुए हैं, उनका दिल ही कहीं नहीं लग रहा। ज़ाहिर है दिस इज़ ऑल नेचुरल, सारी मिसहैप्स हो रहे हैं जो किसी बहुत मोहब्बत करने वाले के दुनिया से जाने के बाद लोगों को इतनी जल्दी वो एडजस्ट नहीं कर पाते, और ये बिल्कुल नेचुरल सी बात है। तो उस अरसे में बिजनेस भी ठप हो रहा है उनका, इसमें दिखाया गया है। घर का भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, हालांकि मुलाजमाएं मौजूद हैं, लेकिन उनको ये समझ नहीं आ रहा कि घर को किस तरह से टाइम दिया जाए, किस तरह मैनेज किया जाए। घर मैनेज करना आसान काम नहीं है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात ये है जी। कि घर के काम किसी बहू को नहीं करने, नौकर मौजूद है। नौकर मौजूद है, सिर्फ बर्तन गाइड धोने करने, के, हाँ, गाइडेंस देनी है बर्तन उनको। धोने के लिए मेड्स हैं, खाने पकाने के बिल्कुल। लिए फीमेल कुक है, सफाइयाँ करने के लिए नौकरानी है। अगर अगर आप ऐसी खातून हैं जो मेड्स को और घर के स्टाफ को भी सुपरवाइज और मैनेज नहीं नहीं कर कर सकें सकते, तो दोज लेडीज आर रियली लॉस्ट इन लाइफ। वो बिल्कुल। रियली लॉस्ट हैं कि इनको खुद काम नहीं करना पड़ रहा। आई विश बल्कि कि ये लोग ऐसी दुनिया के ममालिक में जाएं जहाँ जॉब से लेके, बिल से लेके, गाड़ी धोने से लेके, गाड़ी को सर्विस करवाना, ट्रैश को रोल बिल्कुल आउट सही करके बात है। बाहर रखना, वो सब लेडीज खुद करेंगे। इनसे सिर्फ स्टाफ मैनेज नहीं हो रहा। और अनफॉर्चुनेटली अगेन ये एक रेलेवेंट स्टोरी है, बिकॉज बहुत से घरों में ऐसा हो रहा है। Yes. और दूसरी बात यह है कि एक और चीज़ इसमें दिखाई गई, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल। वो फ़ोन इसलिए पास होता है ताकि आपको बर वक्त कहीं भी आप हैं पकड़े जा सकें। इमरजेंसी आपकी ज़रूरत है कहीं बहुत ज़्यादा, तो आपको कांटेक्ट किया जा सके, घर वाले ख़ास तौर पर, कि वो बता सकें कि आप कहाँ हैं। आप अगर उनको आपकी ज़रूरत है तो आप वक्त पे पहुंच सकें उनके पास। लेकिन इसमें दिखाया गया है कि इतना इमेच्योर रवैया है हमारी ख़वातीन का। और ये मैं ड्रामे में देख के नहीं कह रही, बल्कि मैं देख रही हूँ जो भी ड्रामे लिख रहा है उसकी नज़र बहुत है सोसाइटी पे कि हो क्या रहा है। तो ये अक्सर ख़वातीन जो है अपने शौहर का फ़ोन उठा के अपनी पर्स में डाल लेती हैं कि अब हम बाहर जा रहे हैं तो लिहाजा आपको फ़ोन नहीं मिलेगा। हालांकि फ़ोन इतनी इम्पॉर्टेंट डिवाइस है कि उसको हर वक्त अपने साथ होना चाहिए। क्या पता कब किसी प्यारे को आपकी ज़रूरत पड़ जाए। और ये बहुत ही एक तरह से फ़ोन जैसी चीज़ के साथ बहुत भोंडा मजाक है।
एंड इट्स सो पर्सनल. आई नो कि हस्बैंड एंड वाइफ में बातें छुपी नहीं होनी चाहिए, लेकिन फ़ोन जो है वो एक पर्सनल चीज़ है. बिल्कुल। इट्स लाइक समवन्स टूथब्रश, हाँ। राइट? वो उनका एक पर्सनल आइटम है. तो फ़ोन को रहने दीजिए और इतना कंट्रोलिंग मत बनिए. अगेन हम ये बिल्कुल, कमेंटरी बहुत इसलिए दे रहे हैं कि हाँ, ड्रामे में एक रेलेवेंट चीज़ दिखाई गई है जो सोसाइटी में हो हो रही है, रही राइट? है। जी, तो फ़ोन पे अपने हस्बैंड के या हस्बैंड वाइफ के फ़ोन पे, इस पे तो वाइफ को दिखाया बिल्कुल गया है, सही कह रही हैं आप। इस कदर कंट्रोलिंग ना बने. लेट देम हैव द फोन, ओके, यू नो. क्योंकि और जैसे कि इन्होंने कहा कि फ़ोन हर वक्त इसलिए होना चाहिए, वो इंटरनेट सर्फ करने के लिए या लोगों के ऊपर ट्रोल करने के लिए या उनके ऊपर नज़र रखने के लिए नहीं है कि किसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है. एक्चुअली फ़ोन इज़ देयर कि अगर किसी की फैमिली में कोई इमरजेंसी हो तो दे कैन गेट अ होल्ड ऑफ दैट पर्सन इन दैट इमरजेंसी. और इन दिस केस वो बेचारी बहन जो है वो सबको फ़ोन कर रही है, इस भाई को कर रही है, उनकी बिल्कुल। वाइफ ने फ़ोन टर्न ऑफ कर दिया है, उनकी सास को कर रही है. चले उनके घर में तो शादी हो रही थी, लेकिन छोटे भाई को कर रही हैं. छोटे ज़ुहैब जो हैं वो नहीं, उनकी वाइफ उनका फ़ोन वो करके बैठी हैं. और ये कौन हजरात हैं जो अपने फ़ोन अपनी बीवियों के हवाले कर देते हैं? बच्चों के Who भी, are बच्चे you? गेम खेल रहे हैं। कौन है, यू नो? हाँ, बच्चे बाप के यू फ़ोन नो, पे गेम खेल रहे हैं। किस या वक़्त किसी को क्या ज़रूरत पड़ जाए, किसी को नहीं मालूम, आप घर से दूर हैं, जिस तरह इस ड्रामे में दिखाया। और ये है कई जगह मतलब इसको देखा भी गया है, ऑब्ज़र्व किया गया है कि इस तरह होता है। तो लिहाज़ा ये चीज़ें कंट्रोल हैं करें अपनी लाइफ के सही हाँ, एस्पेक्ट्स, कंट्रोल करें. इंसान को कंट्रोल करने के इंसान, बजाय अपने आप यस, को अपने आप कंट्रोल को करें। कंट्रोल करें. आपको समझ आना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है. बीवी से मोहब्बत करना मतलब इट्स गुड, लेकिन होल्ड ऑन टू योर फोन. तो अभी देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है, क्योंकि अब यही दिखाएंगे कि क्यास मचा हुआ है घर में, किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। तो आप क्या समझते हैं आगे क्या होने वाला है? मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ससुर जो हैं उनकी अब हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है, तो प्रॉबली ये जो शाइस्ता वाहिदी का कैरेक्टर है जो महरीन के खाला की नंद है, जी, उनसे ये ऑब्वियसली उनसे ये शादी करवाने की आई थिंक कोशिश करेंगे. लेकिन आई थिंक कि वो चलेगी नहीं, बिकॉज जो इनके ससुर हैं, मतलब ऑब्वियसली शादी टूटेगी तो नहीं, लेकिन आई थिंक कि वो जो इनके फादर हैं वो कभी भी मुनज़्ज़ा जो इनकी वालदा थी उनकी मोहब्बत के उससे निकल नहीं सकेंगे, बिकॉज उन खातून ने स्टैंडर्ड बहुत हाई सेट किया है ना. बिल्कुल। लाइक वो घर भी मैनेज कर रही हैं. सुबह वन ऑफ द ओपनिंग सीन्स में दिखाया है कि वो शौहर के जूस निकलवा रही हैं, बेटे के लिए भी नाश्ता बनवा रही हैं, यू नो. तो शी इज़ लाइक वेरी एक्टिव, राइट? और इस किस्म की एक्टिव ख़वातीन का जो इतने अच्छे तरीके से घर और लाइफ को मैनेज कर रही हूँ, तो वो बार जो सेट हो जाता है उसको मीट करना आसान नहीं बहुत होता. मुश्किल है आसान नहीं दूसरे के होता. लिए ना, बिल्कुल. आसान नहीं है। तो इंसान कितना खूबसूरत हो, कितना कुछ हो, लेकिन जब एक खातून जो है अपनी जगह बना लेती हैं और वो एक बार सेट कर देती हैं, तो उसको मीट करना इम्पॉसिबल है. तो ओएसटी में भी तो दिखाया जा रहा है ना, सुनने को आ रहा है ना, तू मेरा बन सका ना मैं तेरा बन सका, कुछ इस तरह का है. अब ये नहीं पता समझौता कौन करेगा, लेकिन ये कि एक अच्छी कहानी है ख़ासतौर पर उन ख़वातीन के लिए कि आप अपना ख्याल रखें. इस उम्र में आके इतनी भाग दौड़, इतनी जिम्मेदारियाँ, दिस इज़ टू मच. तो उसका एंड यही होता है कि बीमारियों को दोस्त बना लेती हैं और ये सही नहीं है. ठीक है, बिल्कुल. और अंटिल नेक्स्ट टाइम अपना बहुत ख्याल रखें. इन ड्रामास जो इनमें लेसन्स होते हैं उनके बारे में भी सोचें. और एक बहुत अच्छी बात जो सोशल मीडिया से और ड्रामास वगैरह से हो गई है वो ये है कि आप अगर जॉब पर हैं या कहीं भी हैं तो आप कभी भी इसको यूट्यूब पे देख सकते हैं, राइट? इन ड्रामास को, लाइक यू डोंट हैव टू बी ग्लूड टू द टीवी जब वो एयर होता है. और इनसे आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं लाइफ में खुद एक्सपीरियंस किए बगैर, राइट? इट्स काइंड ऑफ लाइक लर्निंग फ्रॉम अदर पीपल्स एक्सपीरियंस. तो बहुत अच्छा ड्रामा है. अगेन इट स्टार्टेड आउट काइंड ऑफ सैड, लेकिन अभी एक डायरेक्शन में जा रहा है एंड आई एम श्योर ये मजीद प्रॉब्लम्स हाईलाइट करेगा क्योंकि सो फार इसने बहुत ज़्यादा की हैं. तो विल बी बैक
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक, और ये हर ऑलमोस्ट आई थिंक मंडे थ्रू थर्सडे हर रोज़ एयर हो रहा है। हाँ। तो हमारे लिए इसको हर रोज़ जो है वो रिव्यू करना पॉसिबल नहीं है, तो वी विल क्लम्प इट अप टुगेदर, और हफ्ते में इसका हम एक रिव्यू दिया करेंगे, या इंशाल्लाह ये मैक्सिमम 2 डिपेंडिंग ऑन कि कितनी स्पीड पे चल रहा है। लेकिन अंटिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, और लिव एंड लेट लिव। इंशाल्लाह फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Signing off for the Mezzanine Show. Take care. Allah Hafiz.